کہ آپ کی ٹانگیں ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں۔ یہ خدا کی انجیل 19 باب اور اس کی ہم 28 اور 30 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ وہ شب پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ 30 آیت، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا کا کلام پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے بھائی سب تشریف رکھیے۔ یہ دیکھیں، آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے منہ پہ روڑ کے آ گئے۔ السلام علیکم جس پر تو خدا کو برکت دے۔ میرے عزیزو، میں اگر اس کی محبت کی بات کروں، میں اگر اس کے پیار کے بارے میں بات کروں تو وہ کم ہے۔ میں اس لائق نہیں کہ خدا کی محبت کے بارے میں کچھ بتا سکوں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھتا ہوں، خدا محبت ہے۔ آمین۔ میں اتنا اس لائق تو نہیں کہ خدا کی محبت کے بارے میں بتا سکوں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھتا ہوں کہ خدا محبت ہے، اور محبت کی کوئی گہرائی نہیں ہوتی۔ آمین۔ محبت کی کوئی ہمیں سلیپر نظر آ رہی ہے، محبت کی گہرائی۔ آمین۔ کوئی گہرائی نہیں ہے کہ اتنی لاتعداد محبت، اتنی محبت کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ہوتا تو بس ہو جاتی۔ آمین۔ ہلیلویا۔ صبح 6 بجے رات پوری عدالتوں میں جا رہے، میں آپ کو سکھاؤں گا۔ میں 506 کلمہ اکٹھا بیان کروں گا، کیونکہ پاس کامران صاحب نہیں آئے۔ 506 کلمہ تقریباً 15 منٹ میں اس کو دونوں کلموں کو میں بیان کروں گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات پوری عدالتوں میں جب رات کو پکڑوایا گیا خداوند یسوع مسیح، اس کے بعد عدالتوں میں پیش کیے گئے۔ صبح 6 بجے 3 پہر ہوتے ہیں، صبح 6 سے 9، 9 سے 12 اور 12 سے 3 پہر ہوتے ہیں، اور 3 پہروں کے درمیان میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا، ظلم کی انتہا۔ آمین۔ ظلم کی، لیکن سمپل سی بات، میں اس کو سادہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کوئی مقصد رکھا ہے، فور ایگزامپل ہے، آپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس مقصد کے لیے آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ خوب محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہیلو، اپنی جان کو تو خود ہوگے، کسی نہ کسی طریقے 10 لاکھ جمع ہو جائے۔ آمین۔ جب 10 لاکھ آپ کے پاس جمع ہوگا، جب آپ شادی کریں گے اپنے بیٹی بیٹے کی، تو آپ اس دکھ کی طرف جائیں گے کہ میں اتنی مشکل کمایا، یا اس خوشی وال جاؤ گے کہ شکر ہے پروگرام کامیاب ہے؟ بتائیں مجھے۔ ہیلو، جلدی سے بتائیں، سالوں 2 سے نظر نہیں آئے گا۔ ہیلو، ہمیں یہ نہیں ہے، ہم کہیں گے شکر ہے خدا جس مقصد واسطے میں محنت کی تھی، میری فیملی نے محنت کی تھی، وہ مقصد۔ آمین۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جہاں پر نورانی جو ہے، فرشتے جو ہیں، ان کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا کی طرف اس کی اجازت کے بنا تکتے رہے، دیکھتے رہے، تو انسانی خاکی ہو کر وہ اس پر تھوک رہے ہیں، انسانی خاکی ہو کر وہ اس کو مار رہے ہیں، انسانی خاکی ہو کر وہ اس کو ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پلان ہے۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں، پیدائش کی کتاب میں ہم چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ سب بولے، خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اگر ہم پیدائش 3 باب
और उसकी 15 आयत को देखें तो लिखा है, खुदा फरमा रहा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर। मेरे अजीजों में आपको इस बात की तरफ लेकर आना चाहता हूं, मैं आज आपको इस बारे में सिखाना चाहता हूं, औरत की नस्ल से कौन था? हेलो, जल्दी से बताएं, औरत की नस्ल से कौन था? हेलो, जल्दी से बताएं। यसू। हेलो, औरत की नस्ल से कौन था? यसू। और खुदा पेशन गोई जो है पहले ही से कर रहे हैं कि औरत की नस्ल से, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपको ज्यादा गहराई में या ज्यादा वो बातों की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इस बात की तरफ लेके जाना चाहता हूं, यीशु मसीह शक्ल आदम थे, ना के समझेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। बेशक आप खुशी में हैं, लेकिन आज तक मैं थोड़ा दुख की तरफ लेके जाना चाहता हूं। यीशु मसीह शक्ल आदम थे, नस्ल आदम नहीं थे। आमीन। यानी कि आदम होंगे और शक्ल इंसाना वाली है सी, लेकिन वो आदम की नस्ल जो नहीं सी। आमीन। यू अंडरस्टैंड? मेरी बात की समझ आई है? वो शक्ल आदम जरूर थे, आदम जैसे थे, लेकिन औरत की नस्ल से थे, आदम की नस्ल से। ये क्या बात है? ये क्या बात है? आमीन। क्योंकि वो हालेलुया माँ बाप की ख्वाहिश से पैदा हुए। हेलो, माँ बाप की ख्वाहिश से पैदा हुए। वो मेरे अजीजों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई जो है वो पैदाइश ही से हमें मिलती है कि वो इब्लीस को कष्ट देगा। हालेलुया। ये साया की किताब का मुताला करें और यारन की किताब का मुताला करें और उसके बाद मज़मूर की किताबों में आपको ले जाओ तो हमें वहां पर तमाम पेशन गोइयां मिलेंगी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस मकसद को पूरा करने आए। तमाम कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हो। आमीन। कितनी कुर्बानियां हो रही हैं? तमाम कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हुआ। शरीयत के हुक्मों की तस्वीर जो है वो तमाम हुई। शरीयत के मुताबिक जितने हकाम थे वो आकर खुदा ने पूरे किए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पर उसने एक जबरदस्त बेटा बना और माँ बाप की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से बाप की जिम्मेदारी यानी अपने बाप की भी रिस्पेक्ट की, अपनी माँ की भी इज्जत की, ये भी उसने किया और इसके बारे में भी उसने कहा तमाम हुआ। हालेलुया। हालेलुया। बात की समझ आ रही है? मैं आपको किस मकसद के लिए किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो पेशन गोइयां हुई थी उसको यीशु मसीह के मुताबिक कि उसको मारा जाएगा, उसके कपड़ों का पूरा डाला जाएगा, उसको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने तमाम तरह के तकाज़े इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया ताकि हम सब जो है वो बरकत पाए। तमाम हुआ, मैं इस बात की तरफ आपको लेकर आना चाह रहा हूँ। अब अभी हमें फील हो रहा है तमाम हुआ इज अ शॉर्ट वर्ड। आमीन। हम समझ रहे हैं कि छोटा या लफ्ज़ है तमाम हुआ। यूनानी ज़बान में जब बादशाह कोई जंग जीतते थे, जब कोई फतह करते थे, फतह मंदी का ऐलान जो होता था वो होता था तमाम हुआ। और अगर मैं इसको यूनानी में इसकी कहावत की तरफ जाऊं तो लिखा है लो एंड निदा। लो एंड निदा इसका मतलब है कि खत्म शुदा है, यानी कि इससे आगे कुछ भी नहीं। वो तमाम बातें जिस मकसद के लिए मैं निकला हूँ, जिस मकसद के लिए मेरी जंग थी, वो जंग जो है मैं फातेह कर चुका हूँ, उस जंग को मैं जीत चुका हूँ। तो यूनानी में जब बादशाह जो
वो किसी जंग को जीतता है। बादशाह जो है किसी चीज को फतह करता है। बादशाह जो है अपने मिशन में कामयाब होता है तो वो ललकारता है, वो कहता है कि तमाम हुआ, फतहमंदी मेरे हाथ में है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ, जब खुदावंद यीशु मसीह इस बात का ऐलान करते हैं कि तमाम हुआ, जो नीचे सिपाही है, जो नीचे लोग हैं, वो इस बात को देखते हैं कि अन्नी कुट खा के सलीब दे तेरी बादशाह वाली हरकत आ रहे। आमीन। सलीब के ऊपर भी बादशाह, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बादशाह जो होते थे, ये जंग के लिए निकलते थे, मिशन के लिए निकलते थे, और उस वक्त ये कहते थे तमाम। आमीन। मेरे अजीजों, जब भी यूनानी जो है, मैं इनको इस कलमे को मतलब स्टडी कर रहा था, वो अपने जुमलों को ना छोटा करके बयान करते थे। यानी कि हम एक चीज को समझाने के लिए ना काफी तशरीह करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो उस चीज को छोटा छोटा करके बयान करे। आमीन। और खुदावंद आज जो है मेरे अजीजों, उसने उस वक्त कहा कि तमाम हुआ, फतहमंदी का ऐलान किया। तो मेरे अजीजों, वो मिशन, वो काम जो है, जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के सरबुर्द लगाया गया था, उस मिशन को उसने पूरा किया और उसने ऐलान किया कि तमाम हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि खुदा ने इंसान को इस दुनिया में इबादत करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए भेजा है। और अगर आप उसकी इबादत कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के अय्याम उसके खुदा के कलाम के मुताबिक गुजार रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुदा का डर है, खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में है, तो आप अच्छी जिंदगी, अच्छी दौड़ रहे हैं। और अगर आप खुदा से दूर हैं तो खुदा आज भी आपका प्यासा है। आमीन। खुदा आज भी अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, लौट आ, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने आसमान और जमीन कितने दिनों में बनाया? हेलो, सब बोले, आसमान और जमीन, सारा कुछ कितने दिनों में बनाया? 6 दिनों में। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने अपना सारा मिशन भी 6 दिन, 6वें कलमे में पूरा कर दिया। आमीन। आमीन। 7वें दिन खुदा ने क्या किया? आमीन। इस 7वें कलमे में भी खुदा अपनी रूह खुदा ने था जी। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 दिन में खुदा ने आसमान, जमीन और सब कुछ बनाया और 7वें दिन आराम किया। और 6ठे दिन में खुदा ने अपने तमाम मकासद को, अपने तमाम इरादों को सलीब के ऊपर चढ़कर अलानिया कर दिया कि मैं, पहला कलमा क्या था? सब बोलेंगे, पीछे से बोलेंगे। पहला कलमा क्या था? मैं माफी के मुतालिक सिखाने आया था। पहला मेरा मिशन पूरा हुआ। दूसरा कलमा, ऊंची बोले, नजात का मिशन मैं लेकर आया था, उस मिशन को मैंने पूरा किया। तीसरा कलमा मोहब्बत का, मैं मोहब्बत को इस दुनिया में लेकर आया और मैंने इस मिशन को पूरा किया। और चौथा कलमा जो क्या था? कुफारे का कलमा, जो मैंने अपना फिदिया देकर कुफारा दे दिया ताकि तुम लोग गुनाहों में न जाओ बल्कि तुम नजात को हासिल करो। और 5वां कलमा जो था वो भी कौन सा था? प्यास का कलमा था। वो प्यास, खुदा कहता मैं प्यासा हूँ। और 6ठा कलमा जो था वो था फतहमंदी का कलमा, तमाम हुआ। और खुदा कहता है कि जिस मिशन के लिए मैं इस दुनिया में भेजा गया था, जिस मकसद के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया था, वो मिशन पूरा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ईद फसह पर बड़ा ज़िबा किया जाता था, ईद फसह पर बड़ा को ज़िबा किया जाता था,
تو 4 दिन उसको देखा जाता था, 4 दिन उस पर नजर की जाती थी कि ये इस पे किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, इसको किसी तरह का कोई मसला तो नहीं है। 5वें दिन अपने पास रखा जाता और 6ठे दिन ईद फसह पर बड़ा को कुर्बान कर दिया जाता, और वो बड़ा कुर्बान किया जाता था जो बेअहब हो। मेरे अजीजों, इस बात का ऐलान जो है वो पिलातुस करता है जब वो आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह को अदालत में लेके जाया जाता है। जब आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह को अदालत में पेश किया जाता है, आप सब इस स्टोरी से वाकिफ है। तो पिलातुस कहता है मुझे तो इसमें कोई गुनाह नहीं मिला। वो अपने हाथ धोता है और कहता है कि ये बेअहब बड़ा है, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, मुझे इसमें कोई गुनाह नहीं मिलता, इसका खून तुम पे जाएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा। ये इस बात को जाहिर करती है। और इस बात को मैं और पीछे लेता जाऊं, आपको पता है यीशु मसीह को 6 जगहों पर पेश किया गया। पहले 3 मजहबी अदालतों में पेश किया गया, फिर अगले 3 सियासी अदालतों में पेश किया गया, और 6 के 6 अदालतों में खुदावंद यीशु मसीह को बेअहब पाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ईद फसह पर बड़ा पेश किया जाता था, उसको 6 दिन 4 दिन चेक किया जाता था, 5वां दिन अपने पास रखा जाता था, और 6वें दिन जब वो बेअहब होता था तो उसको कुर्बान कर दिया जाता था। और इस बात को आपके और मेरे खुदा ने इस मिशन को पूरा किया, इस बात को पूरा किया, और उसने 6 अदालतों में पेश हुआ और 6 अदालतों में उसको बेअहब साबित किया गया। और मेरे अजीजों, यूहन्ना इस बात की पहले ही पेशन गोई कर देता है कि वो बेअहब बड़ा है जो दुनिया के जहान के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पेशन गोई है। आमीन। ये पेशन गोई है जो खुदावन ने पूरी की, और खुदावन यीशु मसीह को डिक्लेयर किया गया कि ये बेअहब है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो उसके जो लोग थे वो कहते थे भाई नहीं जी, अनुसी सलीब ही देना है। लेकिन वो जरूर था क्योंकि खुदावन की पेशन गोइयां थी। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको इस बात पर लेकर आना चाहता हूँ कि आपका और मेरा खुदा जो है वो बेअहब है। आमीन। और इसलिए वो चाहता है कि आप भी खुदा के साथ वफादार हो, इसलिए वो चाहता है कि आपकी जिंदगियां बच जाएं और आप खुदावन में वफादार हो। आमीन। तो अगर आप खुदा से दूर हैं, अगर आप खुदा से हटे हुए हैं, तो आप खुदा आपका प्यासा है। आमीन। और अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो वेल एंड गुड है, फिर आप खुदा की मकसद को पूरा कर रहे हैं। लिखा है जो निकली है खुदा की खोज में, जो निकली है खुदा की खोज में है, वो ही जिंदगी है मौज में। जो खुदा के साथ है, जो खुदा के साथ वफादार है, वो दे मज़े च। और जिहड़ा खुदा दे नाल नहीं है, जिहड़ा खुदा दे नाल नहीं सही चलदा, उनके नाल मुसीबतां, परेशानियां, दुख, प्रॉब्लम्स उसके पास आती रहती है। खुदा आपको